Hello everyone, my name is Dr. Aditya Melthi. I got an All India rank of 150 this year in NEET PG 2024. I had an All India rank of 750 in INI set November and an All India rank of 2500 in my INI set. I wanted to make a video on what makes grand tests so grand. I actually wanted to highlight the importance of grand test during my preparation and how I used grand test to the fullest that I could. So, without wasting any further time, what was the contribution of grand tests in my preparation? तो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन को 100% मानूं तो 100% प्रिपरेशन में से एक्चुअली 50 to 60% was revision of notes and approximately 50% or 40 to 50% was my grand tests or the grand tests which I give. Again, just blindly giving the grand test is not important. You have to properly give grand tests, you have to properly analyze grand tests, you have to properly analyze your mistakes and learn from them. Only then the grand tests would benefit you. So you have to make a proper use of grand tests. Which platform to follow, or rather which platform I followed for grand tests? So according to me, I blindly trusted Marrow for grand test. I don't think there is any other app or there is any other domain which nears or parallels Marrow on question banks, custom modules and grand tests. Marrow's grand tests have very thorough explanation below their questions, and I followed Marrow blindly for grand tests. What was the reason for using Marrow? Marrow has wonderful explanation of grand tests below every question. It has a brilliant user interface. It's very easy to use, and the explanations are excellent. And it also gives an excellent report. What do I mean by excellent report? मतलब जब भी आप कोई ग्रांड टेस्ट देते हो उसके बाद मैरो आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताता है, तो उस सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस को देख के आपको ये पता लगता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो उसमें आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हो, और वो सब्जेक्ट्स हैं कौन से जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. So that is one of the best thing of Marrow platform which I felt, and that's why I used Marrow. Using multiple platform for grand tests, I personally did not use any other platform for grand tests. For example, many of my friends and many other batchmates कभी-कभी बीच में cerebellum का grand test देते थे, DAMS का grand test देते थे, या भाटिया के grand test देते थे, which were free for all. I never gave any other grand test except Marrow, never ever. I only followed Marrow and proper Marrow schedule for grand tests. So I did not use any other platform. If you're using any other platform, for example, if कोई cerebellum के grand tests कर रहा है या DAMS के grand test कर रहा है या भाटे के grand test कर रहा है, you can stick to it if you are finding it good. But I personally felt that Marrow was the best. Next questions, how much grand test did I give? So actually many people were asking कि मैंने कितने grand test दिए थे, and many students were asking कि मैंने कैसे किस frequency पे grand test दिए थे. तो उसलिए in total I gave approximately 26 grand tests. एंड ऑब्वियसली ये नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है क्योंकि हमारा पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया था. अगर आप मार्च तक देखते तो आई थिंक कि मार्च तक मैंने सिर्फ 17 या 18 ग्रांड टेस्ट दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए होंगे. फिर मार्च के बाद जब हमारा पेपर पोस्टपोन हुआ तो स्लोली आई यूज्ड टू गिव मोर ग्रांड टेस्ट्स, एंड ओनली आउट ऑफ दीज 26 ग्रांड टेस्ट 7 to 8 वर आईएनआई बेस्ड ग्रांड टेस्ट. क्योंकि मैरो में आईएनआई बेस्ड ग्रांड टेस्ट कंपैरेटिवली कम आते हैं, कुछ ही टाइम पहले से आईएनआई के आने शुरू होते हैं, तो हर आईएनआई से पहले मेरे ख्याल से 3 से 4 या 5 ग्रांड टेस्ट ढंग के आते हैं. तो आई गेव अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ग्रांड टेस्ट व्हिच वर आईएनआई बेस्ड. इन टोटल आई गेव 26 ग्रांड टेस्ट. What was the frequency of grand test? Another important question which needs to be addressed is what was the frequency of grand tests? So yes, मेरी frequency of grand tests was actually the same जिससे जैसे मैरो में आते हैं. मैरो approximately gives ग्रांड टेस्ट ट्वाइस एवरी मंथ. हर महीने में अप्रोक्सीमेटली 2 ग्रांड टेस्ट होते हैं. कभी कभी कोई नेशनल ग्रांड टेस्ट आ जाता है तो 3 हो जाते हैं, बट एट मोस्ट एवरेज पे आप देखोगे तो हर महीने के 2 ही ग्रांड टेस्ट होते हैं. तो मैंने ब्लाइंडली मैरो की ही फ्रीक्वेंसी ग्रांड टेस्ट के लिए फॉलो करी थी. मैंने कोई बहुत ज्यादा ग्रांड टेस्ट टाइम में पीछे जाके नहीं दिए. जब मेरे लास्ट के 2 या 3 महीने बचे थे उसमें मैं एवरी वीक ग्रांड टेस्ट देता था और हर हफ्ते उन ग्रांड टेस्ट को एनालाइज करता था. तो मेरे हर महीने में अप्रोक्सीमेटली 4 ग्रांड टेस्ट हो जाते थे, बट ये सिर्फ आखिरी 2 महीने की बात है. इनसे पहले आई यूज टू फॉलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैरो ब्लाइंडली. जैसे मैरो के ग्रांड टेस्ट आ रहे हैं वैसे वैसे मैं ग्रांड टेस्ट देता था. उसके अलावा मैं ग्रांड टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी पे और ज्यादा ध्यान नहीं देता था. वैसे भी आई एम वेरी फर्म बिलीवर ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये डिपेंड नहीं करता कि अगर आपने 1000 ग्रांड टेस्ट दिए, आपने 2000 ग्रांड टेस्ट दिए, कोई मैटर नहीं करता. अगर आपने 20 ग्रांड टेस्ट अच्छे से दिए, आपने इनफैक्ट इवन अगर आपने 15 ग्रांड टेस्ट अच्छे से दिए और आपने 15 ग्रांड टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया है, यू नो द पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक्स, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रांड टेस्ट दो. क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स. हाँ,
दिस इज की व्हाट माई ग्रैंड टेस्ट डे लुक लाइक, कि मैं ग्रैंड टेस्ट कैसे देता था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ग्रैंड टेस्ट देते हो तो जो सराउंडिंग्स होते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है वो आप ट्राई करो कि इट मिमिक्स द इन्वायरमेंट विच यू विल फाइंड ड्यूरिंग एग्जाम्स. आप वैसे घर पे कुछ भी कर लो, यू विल नेवर एवर मिमिक द एनवायरनमेंट जो आपको एग्जाम के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल पे मिलेगा. एग्जामिनेशन हॉल्स आर पैथेटिक. कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे कि मेरा एग्जामिनेशन हॉल कितना गंदा था, ऐसा लग रहा था कि समुद्र पार करके जाना है एग्जाम देने. बट ये सब बात की बातें. सो घर पे भी जब आप ग्रैंड टेस्ट देते हो तो आपको अपना 100% ये ट्राई करना है कि जो ग्रैंड टेस्ट का एनवायरमेंट है इट मिमिक्स द एनवायरमेंट दैट यू विल फेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स. तो मैं क्या करता था कि आई यूज्ड टू गेट अप एट 9 o'clock और 10 o'clock अप्रॉक्सीमेटली. और भले ही मैं बाकी दिन अपना पूरा डेली शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करूँ ना करूँ, मतलब मैं नहाऊं या ना उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ग्रैंड टेस्ट के दिन आई यूज्ड टू गेट अप एट 9 or 10 o'clock. आई यूज्ड टू टेक अ बाथ, ठीक है, एंड आई यूज्ड टू सिट फॉर ग्रैंड टेस्ट. आई यूज्ड टू प्लान on sitting the grand test for at 10:30 approximately in the morning. और मैं ये एम करता था कि जो मैं ग्रैंड टेस्ट है ना that I used to give at last day of the grand test, क्योंकि जो मेरी प्रेडिक्टेड रैंक है वो थोड़ी सी जेन्युइन आए. क्योंकि अगर आप ग्रैंड टेस्ट बाद में देते हो जब सब लोगों ने दिया होता है और उसका विंडो पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो जो रैंक होती है वो प्रेडिक्टेड रैंक होती है. दैट इज नॉट अ वेरी डिपेंडेबल रैंक. बट मेरे को रैंक से इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था एक्चुअली. तो मैं लास्ट दिन देता था और अगर मैं थोड़ा लेट भी हो जाता था बैठने पे तो मेरे को इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था, ठीक है. बट आई यूज टू एम कि मैं थोड़ा टाइमली बैठ जाऊं. बट इवन इफ यू कैनॉट सिट टाइमली, अगर आप 2 बजे से पहले ग्रैंड टेस्ट खत्म नहीं कर रहे हो, अगर उसकी विंडो भी एक्सपायर कर रही है, तो द ओनली डिफरेंस वुड बी दैट योर रैंक वुड बी प्रेडिक्टेड. और हम आगे देखेंगे कि रैंक एक्चुअली डज नॉट मैटर इन ग्रैंड टेस्ट. अब ग्रैंड टेस्ट में आपकी क्या रैंक आ रही है डज नॉट मैटर. सो आई यूज टू सिट फॉर ग्रैंड टेस्ट एट 10:30 विद लैपटॉप एंड अ माउस. इंपॉर्टेंट ये माउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेंटर पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इतना वाहियात माउस होता है वो, कि आप कहीं स्क्रॉल करो वो कहीं जा रहा है, उसका स्क्रॉलर तो कभी काम ही नहीं करता, आपको अपने हाथ से सारी चीजें ड्रैग करनी पड़ती हैं क्लिक कर करके. तो द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू गेट एट योर सेंटर आर पैथेटिक. यू हैव टू कीप अप विद इट व्हाइल यू आर गिविंग द ग्रैंड टेस्ट एट होम एज वेल. सो यस, मैं ट्राई करता था कि मैं 2 बजे से पहले खत्म कर दूं, बट नॉट लेस देन ऑफन ये कभी भी टाइम से खत्म होता नहीं था. 90% ऑफ माई रैंक्स वर प्रेडिक्टेड रैंक, क्योंकि मैं कभी भी किसी टाइम से ग्रैंड टेस्ट दे नहीं पाता था, ठीक है. एंड यस, हाँ, तो मैंने एक बार अगर ग्रैंड टेस्ट दे लिया अप्रॉक्सीमेटली 2:30 to 3 o'clock मेरा ग्रैंड टेस्ट खत्म होता था. आई यूज टू गो फॉर लंच, और आफ्टर लंच आई यूज टू, हाँ ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि 4 to 6 PM पे आई यूज टू डू 100 क्वेश्चंस ऑफ 2 कस्टम मॉड्यूल्स. यस, बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने इतना अर्ली अपने प्रिपरेटरी फेज में स्टार्ट नहीं करा था. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैंने अपना लास्ट आईएनआई सेट दिया था, मैं आईएनआई सेट, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आई कुड नॉट मैनेज माई टाइम. तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैं आईएनआई सेट का मेरा पहला सेट आया तो मेरे जो अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस थे जिनको मैं विजिट ही नहीं कर पाया. मैं रीविजिट की बात नहीं कर रहा, मैं 5 क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाया था क्योंकि वो सेट का टाइम खत्म हो गया था. तो पहले सेट के बाद ही क्या हुआ कि मेरे हाथ में ट्रेमर्स होने लग गए, मेरे हाथ कांपने लग गए, और मुझे लगा कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई न्यू कि ये आईएनआई सेट तो इज लॉस्ट, ठीक है, दिस इज अ लॉस्ट कॉज. मेरा आईएनआई सेट में कुछ नहीं होगा. आई ट्राई टू कंपोज माई माइंड, बट इट वॉज अ स्टेट ऑफ पैनिक, ठीक है. मैं बिल्कुल पैनिक कर गया और मैंने जैसे ना तैसे करके वो आईएनआई सेट खत्म किया. आई गॉट अ बैड रैंक. मेरी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 3 times इफ नॉट मोर जंप हो गई नवंबर आईएनआई सेट से मैं आईएनआई सेट में. तो आईएनआई सेट के बाद मुझे एक चीज पता लग गई कि आपको अपने दिमाग में कितना भी लगता है ना कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो, लेकिन पेपर में जाके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट हमेशा सफर करती है. तो उस टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए मैंने मे आईएनआई सेट के बाद क्या करना शुरू करा था कि जब भी मैं ग्रैंड टेस्ट देता था, उस ग्रैंड टेस्ट के खत्म होने के बाद लंच, आफ्टर डूइंग माय लंच, मैं क्या करता था, मैं 100 क्वेश्चंस की कस्टम मॉड्यूल बनाता था. 100 क्वेश्चंस की कस्टम मॉड्यूल बनाता था और उसको अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करता था. ऐसे मैं 2 बार करता था. जैसे मैंने 100 क्वेश्चन की कस्टम मॉड्यूल बनाई, उसको 50 मिनट में सॉल्व किया, टाइमर फिर से स्टार्ट करा, एक और 100 क्वेश्चन की कस्टम मॉड्यूल बनाई और उसको फिर 50 मिनट में सॉल्व किया. ये सिर्फ मैं इसलिए करता था जाकि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि इन 100 कस्टम मॉड्यूल्स को मैं एनालाइज नहीं करता था. मैं ये नहीं देखता था कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं. मेरा प्राइमरी एम ये होता था कि अगर मुझे फाइनल पेपर में क्वेश्चंस एक भी बार पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो मैं एक ही गो थ्रू में कितने क्वेश्चंस सही कर सकता हूं. तो मैं 100 क्वेश्चंस 50 मिनट्स आई यूज्ड टू वेरी क्विकली गो थ्रू ऑल ऑफ दीज 100 क्वेश्चंस. 50 मिनट के आसपास मुझे लगते थे और ऐसा मैं 2 बार करता था. सो दिस स्टेप आई यूज्ड टू डू आफ्टर आई स्टार्टेड आफ्टर माय आईएनआई सेट. उससे पहले मैंने कभी ये नहीं करा. And the main and the most important part of the day was analyzing my grand test. जो मैं मतलब ये कस्टम मॉड्यूल्स करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप हमेशा एनालाइज करता था. रात के अप्रॉक्सीमेटली 12, कभी कभी 1 भी बज जाते थे ग्रैंड टेस्ट को एनालाइज करते हुए. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय डे. हाँ,
And you should remember कि yes कि hard work beats talent if the talent doesn't work hard. This is very 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 true for NEET PG. ये मैटर नहीं करता कि किसके ग्रैंड टेस्ट में कितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि कौन अपने कॉलेज टाइम पे टॉपर है, ये मैटर नहीं करता कि कौन अपने कॉलेज टाइम पे कितना पीछे है, क्या उसकी आज तक कितनी रैंक आई है कितनी नहीं आई. Nothing matters. The only thing that matters is are you slogging your ass off, are you sitting on the chair, and are you putting in those hours which are needed. ठीक है, तो hard work is the only thing that matters. If you're sleeping at the end of the day with no regret, ठीक है, then that means you're working hard. So that's the only thing that you need to focus upon. So my grand test progression. अच्छा, grand test progression से पहले हम ये देखते हैं कि लोग पूछते हैं, लोगों को ये लगता है जब वो अपने grand test दे रहे हैं कि उनके scores increase नहीं हो रहे. तो इसलिए मैंने ये चीज अपने grand test में स्टडी करी थी अब grand test खत्म होने के बाद कि it took me 16 grand tests to cross the mark of 500. ठीक है, marks 500 marks. It took me 7 more grand tests to cross the mark of 600. मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 ग्रैंड टेस्ट में मेरे मार्क्स 600 से ज्यादा आए थे, जिसमें 2 ग्रैंड टेस्ट में 601 थे और 1 ग्रैंड टेस्ट में 620 थे. सो इट टेक्स टाइम. ये बताने का मतलब है कि इट टेक्स टाइम. आपने 4 ग्रैंड टेस्ट दिए, 5 ग्रैंड टेस्ट दिए, आपके 500 से ऊपर मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो कि यार आई एम स्टेइंग इन द रेंज ऑफ 400, तो मेरा फाइनल एग्जाम में तो क्या ही होगा. तो इट टेक्स टाइम. ठीक है, वर्क हार्ड, इट टेक्स टाइम. इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 16 ग्रैंड टेस्ट टू फर्स्ट क्रॉस द मार्क ऑफ 500. और बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने अपने जब ग्रैंड टेस्ट देने शुरू करे थे, तो दे स्टार्टेड, जब उन्होंने ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट किए थे अपने देने इंटर्नशिप के टाइम पे, तो उनके पहले ही ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स 500 से ज्यादा आ रहे थे. बहुत सारे और भी मेरे फेलोज हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था. ठीक है, इनिशियली बहुत उसमें बिगिनिंग में. सो माय ग्रैंड टेस्ट प्रोग्रेशन वाज दिस वाज माय फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट. एब्सोल्युटली पैथेटिक स्कोर ऑफ 144. इतने तो बच्चों के सही क्वेश्चंस होते हैं जितने मेरे टोटल मार्क्स सही थे. ओनली 49 क्वेश्चंस वर करेक्ट. 100 क्वेश्चंस का तो मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ से आए. नो आइडिया भाई, कोई आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए. दिस वाज द पैथेटिक स्कोर ऑफ माय फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट. दिस वाज माय लास्ट ग्रैंड टेस्ट व्हिच आई गिव. आई गॉट अ रैंक ऑफ 2800 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, एंड अ स्कोर ऑफ 556 विद 149 करेक्ट एंड 40 रॉन्ग. बहुत बड़ा नंबर है. अगर आपके 40 रॉन्ग फाइनल एग्जाम में हो जाए ना, तो यू डोंट, फिर तो आप भूल जाओ इतनी की रिस्पेक्टेबल रैंक आएगी, क्योंकि इस बार तो बहुत इन्फ्लेशन भी हुआ था. तो यस, दिस वाज माय फाइनल ग्रैंड टेस्ट. दिस वाज द ग्रैंड टेस्ट जिसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे और आई गॉट 163 करेक्ट, 32 रॉन्ग एंड 5 स्किप्ड. ठीक है, तो दिस वाज माय ग्रैंड टेस्ट जिसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका 600 से ऊपर ही मार्क्स आए. एट द एंड यू विल मेक इट. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ग्रैंड टेस्ट लैपटॉप में दे रहे होते हैं ना, तो आपका बहुत अंदर से वो होता है, एक हिडन डिजायर होता है कि एक इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं कि आप ऊपर से दूसरी गूगल की विंडो खोल के ये देख लो कि कौन सा आंसर सही है, कि यार एक एमसीक्यू ही तो है, एक एमसीक्यू व्हाट डिफरेंस वुड वन एमसीक्यू मेक, इसका आंसर देख लेता हूँ. ये नहीं करना है. ठीक है, यू हैव टू अवॉइड इट. ये 2-4 बार सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि यार एक एमसीक्यू खोल के देख लेते हैं. बहुत बार वैसा हुआ भी था कि मैंने 1-2 एमसीक्यू साइड में गूगल की दूसरी विंडो से देख लिए और उनका आंसर मार्क कर दिया. बट अवॉइड इट. ठीक है, ट्राई अवॉइडिंग इट प्लीज. दिस वाज माय फाइनल वो. जब मैंने अपना ग्रैंड टेस्ट पूरा कर लिया था, जितने मुझे 26 ग्रैंड टेस्ट देने थे, दिस वाज द सब्जेक्ट्स जो मेरे सबसे बेस्ट थे. ऑब्स एंड गाइनी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, दीज वर माय टॉप सब्जेक्ट्स. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने ग्रैंड टेस्ट देना शुरू किया था ना, मैं आपको अगर अपने पहले ग्रैंड टेस्ट का वो दिखाऊंगा, अगर वो आगे चल के जब खोलेंगे, तो मेरा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट्स थे विच वाज माय लोएस्ट सब्जेक्ट. इतने नीचे आते थे कि मुझे लगता था कि दीज वुड बी द 2 सब्जेक्ट्स विच वुड बी माय डूम, कि ये तो मेरे से होंगे ही नहीं. आफ्टर विच थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ, मतलब इनफैक्ट फाइनली ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी वाज अ सब्जेक्ट जो इट बिकेम माय सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री तो थोड़ा सा फिर भी कंपैरेटिवली नीचे ही है, लेकिन यस माइक्रोबायोलॉजी ऊपर आ गया था. ऑप्थेल्मोलॉजी वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, फॉलोड बाय साइकियाट्री. वेरी वेल, इनके क्वेश्चंस मेरे वैसे भी कभी पेपर में सही नहीं होते थे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि आते कहाँ से हैं. तो मेरे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेस थे मैं उन्हीं को बार बार करता था. आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, वरना देखा जाएगा जो भी होगा. और साइकियाट्री में मेरे इस बार पेपर में मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आए थे सेट 2 में से, जिसमें से 2 गलत हो गए थे. 50% के क्वेश्चन मेरे साइकियाट्री में इस बार भी सही हुए हैं. तो इट डज नॉट मैटर अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है, यू हैव टू कॉम्पनसेट इट फॉर. तो ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं. अब मैं इन पे इतना टाइम नहीं दूंगा कि मैं इनके मेन वीडियोस करूंगा और ये सब चीजें करूंगा जाकि मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाए. तो इनका मैंने रिविजन रिसोर्स पे ही फोकस किया था. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ ग्रैंड टेस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको पता है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. सो द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग. ठीक है, द मेन थिंग इज एनालिसिस ऑफ ग्रैंड टेस्ट. लेकिन ग्रैंड टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ ग्रैंड टेस्ट.
तो ग्रैंड टेस्ट को मैं कैसे एनालाइज करता था? सो these are my एक सेकंड, these are my 19 PDFs, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 19 PDFs। तो जो मेरे 19 सब्जेक्ट्स की 19 PDFs थी, मैंने क्या करा था कि अपने हर सब्जेक्ट की एक PDF बना ली थी। तो 19 PDFs फॉर 19 सब्जेक्ट्स, जिनमें मैं अपने गलत क्वेश्चन करता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना सर्जरी का खोले, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे सर्जरी में मेरे पहले ग्रैंड टेस्ट में 7 से 9 क्वेश्चंस गलत हुए, 8 या 9 क्वेश्चंस गलत हुए। मैंने 8 या 9 क्वेश्चंस लिख लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, सेकंड क्वेश्चन लिखा, थर्ड क्वेश्चन लिखा, फोर्थ क्वेश्चन लिखा, ऐसे ऐसे करके फिफ्थ करके 9 क्वेश्चंस लिख लिए। अब जब मैंने नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट अपना दिया, उसमें सपोज करो कि मेरे 7 से 8 क्वेश्चंस फिर से गलत हुए, तो उन 7 से 8 क्वेश्चंस को लिखने से पहले, अपने ग्रैंड टेस्ट में उन 7 से 8 क्वेश्चंस को लिखने से पहले मैंने एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज किया, एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज किया, एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज किया, एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज किया। फिर मैंने आगे अपना 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस जो मेरे गलत हुए, मैंने फिर वो लिख लिए। फिर नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट में मैंने ये सीक्वेंस फिर से फॉलो करी, तो मैंने नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट में एक बार इसको रिवाइज किया, 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 फिर इनको और फिर मैंने अपने आखिरी 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन जो गलत हुआ वो लिख लिया। तो इससे फाइनली जाके होगा क्या? इससे फाइनली जाके ये होगा कि जब आप अपने 10 GT दे लोगे, 10 ग्रैंड टेस्ट दे लोगे, तो यू वुड हैव रिवाइज्ड योर रॉन्ग क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 टाइम्स, ठीक है, ऑफ ईच सब्जेक्ट। और यू वुड एट द एंड नो द पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक्स, कि आपका मिस्टेक्स, पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक्स, कि आपकी मिस्टेक्स किस पैटर्न में हो रही है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से अगर लास्ट दिन आपसे कोई ये पूछता है कि आपके सब्जेक्ट का कौन सा बेस्ट पार्ट है, तो ये पता हो या ना पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि विच पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स डू यू फॉलो। कि अगर मेरे को पता है कि मेरे बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स या लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस पिछले 8 से 9 बार में 3 से 4 बार गलत हुए हैं, तो जब मैं एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन देखूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपकी गलती हो सकती है पेपर में और किस पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स यू विल फॉलो, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा 9 से 10 बार आपका रिविजन हो गया। तो एट द एंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 GTs आप ये समझ जाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। एंड दिस रिकॉग्नाइजिंग दिस पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बायोकेमिस्ट्री, जैसे वो सर्जरी हो गया, तो ये हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री में हमने सेम ये किया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपका एक से एक क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार जाके ढंग से रिवाइज कर लो। तो बेसिकली क्या होगा कि लास्ट में क्या होगा कि कई चीजें आपको ऐसा पता लगेगा कि आपको याद होने लग गई हैं, आपको आपकी गलतियां आपको आपके मेन रिसोर्स से ज्यादा अच्छी तरह याद हो जाएंगी। तो उन गलतियों को बाद में जाके मिटा दो, क्योंकि आपको पता है कि अब वो आपकी गलती नहीं होगी। तो ऐसे करके आपकी ये PDF छोटी होती जाएगी। ये मेरी बायोकेमिस्ट्री की PDF थी जैसे। सो सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज करना है, और क्योंकि आप इस तरीके से एनालाइज कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आपके एनालिसिस का टाइम ज्यादा हो रहा है। मुझे 3 से 4 घंटे तो 3 से 4 घंटे ग्रांट टेस्ट देने में लगते थे, और अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे तो इनको रिवाइज करने में लग जाते थे, ठीक है। 6 घंटे इनको रिवाइज करने में लग जाते थे, रात का कभी कभी 1 और कभी कभी 2 भी बच जाता था। तो एनालिसिस ऑफ ग्रांट टेस्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू, और इट वाज आल्सो द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग थिंग। मेरा संडे या ग्रांट टेस्ट वाला दिन जो था वो सबसे हेक्टिक निकलता था। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस, हाँ, व्हाट डू द ग्रांट टेस्ट स्कोर एंड परसेंटाइल मीन? दे मीन नथिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर कि ग्रांट टेस्ट का स्कोर क्या है, ग्रांट टेस्ट की परसेंटाइल क्या है, इट डज नॉट मीन एनीथिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हाँ, ये मैंने बताया कि दिस वाज द ग्रांट टेस्ट व्हिच आई गेव बिफोर नवंबर INI सेट, जिसमें मेरी 750 रैंक आई थी। इस ग्रांट टेस्ट में अगर आप देखोगे तो मेरे टोटल मार्क्स 110 है, टोटल करेक्ट 127 है, एंड रैंक जो है वो 7000 के अप्रोक्सीमेटली या 6500 के अप्रोक्सीमेटली आ रही है। मेरी रैंक इसके जस्ट बाद वाले पेपर में क्या थी, 750 थी। अगर आप टाइम देखोगे तो इट वाज ऑफ 13th October बिफोर नवंबर INI सेट। दिस वाज माय ग्रांट टेस्ट जो मेरे मे INI सेट से पहले का था। अगर आप देखोगे तो इट वाज ऑफ 22 April, और टोटल स्कोर वाज 135, टोटल करेक्ट वाज 150, व्हिच वाज कंसीडरेबली मोर देन 127, बट मेरी फाइनल मे INI सेट रैंक आई 2500। दिस वाज माय ग्रांड टेस्ट बिफोर नीट 2024, जिसमें मेरी रैंक 150 आई। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 जुलाई को एग्जाम दिया था, रैंक वाज अप्रोक्सीमेटली 3000, स्कोर वाज 556 with 149 करेक्ट। आई फाइनली गॉट 172 करेक्ट। तो इवन द ग्रांड टेस्ट व्हिच यू गिव जस्ट बिफोर द एग्जाम, उसमें आपकी क्या रैंक आ रही है, उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है, इट डज नॉट मैटर इन लॉन्ग टर्म। सो आपको परसेंटाइल पे और आपको स्कोर पे ग्रांड टेस्ट की बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जिस चीज पे आपको ग्रांड टेस्ट की ध्यान देना है वो आपकी स्लो प्रोग्रेशन, ठीक है। और वो ये है कि आपका धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो क्या है, वो ये है कि जब आप यहाँ पे जाओगे अपने ग्रांड टेस्ट में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि
आप अपना ओवरऑल प्रोग्रेस अगर किसी ग्रांड टेस्ट का देख रहे हो या ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं भी देख रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें देख रहे हो, हाँ सपोज कर आप ओवरऑल प्रोग्रेस देख रहे हो, आप आते हो, आप देखते हो इस पे, इसका देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं। लोएस्ट स्कोर वाज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, इन दिस ग्रांड टेस्ट। इसके बाद आप देख रहे हो कि आपने अगला ग्रांड टेस्ट दिया, अगले ग्रांड टेस्ट में भी लोएस्ट स्कोर वाज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। अब इसके बाद आपको पता लग गया कि यार ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो कंसिस्टेंटली मेरी सबसे लो परफॉर्मिंग ब्रांच में से एक है। तो अगली बार आपने क्या करा कि आपने ऑप्थेल्मोलॉजी थोड़ी सी पढ़ ली। तो फिर इसके बाद जो आपने ग्रांड टेस्ट दिया, अब इस ग्रांड टेस्ट में मेरी ओवरऑल परसेंटाइल कम हुई है, इट इज जस्ट 95%, बट अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी देखेंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी कंपैरेटिवली ऊपर आ गई है। 85% आंसर्स आर करेक्ट, यू हैव गॉट 23 आउट ऑफ 28 मार्क्स। तो क्योंकि मैंने पिछले 2 बार से ऑप्थेल्मोलॉजी कम चल रही थी, तो मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ी और वो इंक्रीज और उसकी परसेंटाइल इंक्रीज हो गई। दैट इज व्हाट मैटर्स व्हेन यू आर गिविंग ग्रांड टेस्ट। अपने लो सब्जेक्ट्स देखो, उन पे वर्क करो, उनको इंक्रीज करो। इनिशियल 4 से 5 या 7-8 ग्रांड टेस्ट में क्या होगा कि आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, वो स्टेगनेंट रहेगा उसी टाइम पर, क्योंकि आपको आपकी किसी सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा बड़ी कोई स्ट्रेंथ है नहीं। जब आप धीरे धीरे करके 5-7 ग्रांड टेस्ट में अपने लो जो नीचे नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करके और पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपका ग्रांड टेस्ट का जो स्कोर है वो फाइनल इंक्रीज होगा। सो दैट इज व्हाट मैटर्स इन ग्रांड टेस्ट, टू नो विच सब्जेक्ट्स आर योर वीक पॉइंट, विच सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स विच आर कीपिंग यू लो इन योर स्कोर, और उन पे काम करने का। और a few things that you have to remember कि it's not over until it's over, ठीक है। पहली चीज ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ग्रैंड टेस्ट एक दिन पहले भी दिया अपने फाइनल एग्जाम से और उसमें आपकी रैंक आ रही है 6000, 7000, 2000, 3000, कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, एंड इट इज ओनली ओवर जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुस गए हो। उससे पहले तक यू स्टिल हैव टाइम, उससे पहले तक नथिंग, अभी तक कुछ कोई भी चीज नहीं हुई है, तो यू हैव टू कीप ऑन ग्राइंडिंग योरसेल्फ टिल द लास्ट डे, लास्ट मिनट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज डोंट काउंट चिकन बिफोर द हैच। अगर आपके INI सेट में के ग्रांड टेस्ट में या नीट के ग्रांड टेस्ट में 600 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 170, 180 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरे एग्जाम में तो सभी हो ही जाएगा, इट वोंट हैपन। अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं तो यू ओनली हैव वन डायरेक्शन टू गो, दैट इज बिलो। किसी इंसान के अगर परसेंटाइल कम है तो ही हैज नो स्कोप बट टू इंप्रूव, राइट। वो जितना पढ़ेगा वो इंप्रूव ही करेगा। किसी के ग्रांड टेस्ट के क्वेश्चन अगर 170, 180 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता फाइनल एग्जाम में, तो वो इससे नीचे ही गिरेगा। तो इस डर के साथ आपको पढ़ना है कि यू हैव टू मेंटेन दिस स्कोर। दैट इज व्हाई डोंट काउंट देयर चिकन बिफोर द हैच एंड इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। दोनों एक्सट्रीम्स के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। And the last thing is that you have to study with no regret in your mind. Like I always say, when you sleep at the end of the day, you should have no regret कि आज का दिन मैंने fully utilize करा, मैं थक गया हूँ, and finally I'm sleeping. Sleep for 7 to 8 hours a day. Don't compromise on your sleep. Don't over exhaust yourself, but work. ठीक है, work properly and have no regrets. Thank you.